Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. In this lecture today, we are going to talk about the physical well-being of children with special educational needs and perspectives related to it. ये हमने पिछले भी उसमें कहा था कि इट्स गोइंग टू बी सेकेंड पार्ट विच इज़ गोइंग टू बी रिलेटेड विद स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन. Just to refresh, that well-being has been defined as evaluating life and satisfying and generally experiencing more positive states and emotions than negative ones. ये हमने पिछले लेक्चर में इन डिटेल हम लोगों ने ये इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया कि वेलबींग बेसिकली जो है हमारे पॉजिटिव स्टेट्स ऑफ इमोशंस हैं जो कि हमारे एहसासात और हमारे जो है इफेक्टिव रिएक्शंस जो है such as joy and sorrow and satisfaction with life as a whole, as well as in areas such as employment, family life and housing के बारे में हमारी जो accomplishments हैं और हमारी जो खुशियाँ हैं, कामयाबियाँ हैं, उनको डील करता है, उनके बारे में बात करता है और इसके अंदर नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं होती. These aspects जो हैं ये डायरेक्टली इफेक्ट क्या करते हैं, हमारी अ वाइड वैरायटी ऑफ हेल्थ आउटकम्स को इफेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, इम्यून फंक्शनिंग एंड मोर्टेलिटी रेट्स को ये करते हैं. एंड देन हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ फिजिकल वेलबीइंग, जिसके बारे में हम ये देखते हैं कि when health is absent, wisdom cannot reveal itself, art cannot manifest, strength cannot fight, wealth becomes useless, and intelligence cannot be applied. It's very well said कि अगर you are not healthy, चाहे आप जितने भी अमीर हों, आप खुश नहीं रह सकते. और आपकी चाहे जितने मर्जी इंटेलिजेंट हों आप, अगर आप फिज़िकली और मेंटली हैप्पी नहीं हैं तो आपकी जहानत को आप उस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते. एंड देन हेल्थ हैज़ बीन डिफाइंड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. When we go little bit ahead, then we say that what is physical well-being? Physical well-being consists of the ability to perform physical activities and carry out social roles that are not hindered by physical limitations and experiences of bodily pain and biological health indicators. उसके लिए जो है advances in psychology, neuroscience and measurement theory suggests that physical well-being is associated with self-perceived health, longevity, health behaviors, mental and physical illness, social connectedness, productivity, कि ये सारी चीज़ें जो हैं इसके साथ जुड़ी हुई हैं फिज़िकल वेलबीइंगनेस के साथ. तो हमें ये इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से देखना पड़ेगा कि हमें फिज़िकल
वेलबींग के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा. And then when we go a little bit further, then its terminological differences. They are health related quality of life and then traditionally health related quality of life they are talking about. So some researchers suggest that health related quality of life, well-being, flourishing, positive mental health, optimal health, happiness, subjective का क्या मतलब है, personal well-being, psychological well-being, life satisfaction, hedonic well-being and other terms are synonyms. ये बिल्कुल एक जैसी हैं. Whereas others note that there are major differences based on which dimensions are independent and contribute most to well-being. And then on the other hand, traditionally, health-related quality of life has been linked to patients' outcomes and has generally focused on deficits in functioning. Okay? उसके pains, negativity, negative effect. In contrast, physical well-being focuses on assets in functioning, including positive emotions and psychological resources. वो क्या है? Psychological क्या है? Behavioral resources, positive effect, autonomy, mastery as key components. And then on the other side, that is subjective versus objective well-being and hedonic versus eudaimonic well-being. ये क्या है? Subjective well-being typically refers to self-reports contrasted with objective indicators of well-being. And then some researchers have drawn from both perspectives to measure physical and mental well-being for clinical and economic studies. कि उन्होंने इस चीज़ को मेजर किया फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग को चेक करने के लिए फॉर क्लिनिकल एंड इकोनॉमिक स्टडीज़ के लिए, इन विच hedonic well-being focuses on the feelings of individuals, component of well-being, happiness के जज्बात, इमोशंस की, उसके ऊपर फोकस करता है hedonic. एंड देन eudaimonic well-being क्या है? फोकसेस ऑन द थिंकिंग, सोच के ऊपर, लॉजिक के ऊपर, कंपोनेंट ऑफ वेल-बीइंग, थिंकिंग कंपोनेंट ऑफ वेल-बीइंग, जो फुलफिलमेंट की तरफ देखता है और उसको लेके चलता है. एंड देन पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं, द टर्म पॉजिटिव मेंटल हेल्थ calls attention to the psychological components that comprise well-being from the perspectives of individuals interested primarily in the mental health domain. Okay, उसकी पॉजिटिविटी जो है मेंटल हेल्थ की, जो उसको वेल-बीइंग की तरफ लेके जाती है, साइकोलॉजिकली कंपोनेंट्स हैं उसके. From this perspective, positive mental health is a resource broadly inclusive of psychological assets and skills essential for well-being. कि क्या चीज़ें हैं दोनों? एक behaviorally assets हैं और दूसरे skills हैं essential for well-being, कि वो इसको यानी कि mentally और physically किस तरह से लेके चलता है. People with high levels of positive emotions and those who are functioning well psychologically and socially are described by some as having
complete mental health or as flourishing। तो ये चीज़ क्या है कि जब हम भी अक्सर यही कहते हैं कि अगर कोई बंदे जो है वो साइकोलॉजिकली और सोशली जो है वो हैप्पी है, कंप्लीट है, और उसका जो है मेंटली ही इज़ हैप्पी एंड ही इज़ हेल्थी, तो वो डेफिनेटली फ्लोरिशिंग है और वो उस चीज़ को जो है महसूस करता है और वो खुद भी खुश रहता है, दूसरों को भी खुश रखता है। और जब हम उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, और ये हर किसी को पता है, हम सब में, कि माइंड एंड बॉडी आर लिंक्ड। फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट्स वेलबींग, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ improves social connectedness and quality of life. When you improve your physical health, you will automatically experience greater mental and emotional well-being। कि जब आप फिजिकली एक्टिव होंगे और चीज़ों में हिस्सा लेंगे और कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, इट विल स्ट्रेंथन योर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, आपके कनेक्टेडनेस दूसरों के साथ। फॉर एग्जाम्पल, exercise not only strengthen our heart and lungs but also releases endorphins, powerful chemicals that energize us and lift our mood। ये जो एंडोफिन्स हैं ये सिर्फ उसी वक्त हमारी बॉडी में जन्म लेते हैं जब हम सेंस ऑफ अचीवमेंट हमारे अंदर होती है, हमारे अंदर खुशी होती है, हमारी बॉडी कोई काम करती है तो हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट करता है। माइंड एंड बॉडी का जो लिंक है वो हमें एक वेलबींगनेस की तरफ लेके जाता है। एंड देन एक्टिविटीज फॉर फिजिकल वेलबींग की जब हम बात करते हैं तो सम टिप्स वर डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर टू हेल्प टेक केयर ऑफ फिजिकल वेलबींग विच इंक्लूडेड, हमने इसके अंदर बहुत डिटेल के साथ बात की। वो क्या थी कि गेट अ गुड नाइट स्लीप, गेट गुड एनफ रेस्ट, हेल्थी ईटिंग हो, गेट एक्टिव के जो है लेजीनेस छोड़ें, स्टे हाइड्रेटेड, फिर एक्सरसाइज करें, स्टील अ मोमेंट फॉर सनशाइन के धूप के अंदर जो है वॉक करें, मिलें और जाएं, अवॉइड बिंजिंग। ये सारी चीज़ें जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इनमें बड़ी डिटेल के साथ किया था, ये रेफ्रेश करने के लिए मैंने आपके सामने ये दोहराए हैं। फिर फिजिकल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की तरफ अब हम आते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे एक्चुअली हु आर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। छोटी सी डेफिनेशन इसकी पहले कर लेते हैं। द टर्म स्पेशल एजुकेशनल नीड्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब लर्निंग डिफिकल्टीज और disabilities that make it harder for children to learn, that most children of the same age learn easily. Children with special educational needs are likely to need extra time, different more instructions and extra resources to complete any given task by the teacher from that given to other children of their age। ठीक है। And children with special needs are about twice as likely as other children to be overweight, often due to the related greater likelihood of being sedentary, कि वो सुस्त होते हैं। ये ज़्यादा आपको
ये देखने में ये मोटे ताज़े और सुस्त से बच्चे ये नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। एंड देन सम कंडीशंस सच एज सेरेब्रल पॉल्जी increase the difficulty in eating, thus leading to underweight. But others, such as Down syndromes, may contribute to overeating and overweight or obesity. However, the general trend of obesity in children with disabilities is much greater than underweight. तो ये आपको मोस्टली ये बच्चे जो हैं स्पेशल नीड्स चबी नज़र आएंगे, लेज़ी नज़र आएंगे और आपको ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आएंगे। देन व्हेन वी टॉक अबाउट फिज़िकल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो हैं कि जब इनके रिसर्च के बारे में पढ़ा जाए तो देखने में आता है कि नियरली 20% ऑफ ऑल चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स हैव अ क्रॉनिक कंडीशन और डिसेबिलिटी एंड द लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन रिक्रिएशनल और स्कूल स्पोर्ट एंड फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम्स आर मच लोअर than their non-disabled counterparts. It is therefore critical that all children with disabilities engage in healthy eating and regular adequate physical activity. These children, as much for more than other students, must learn what about the steps to leading a healthy lifestyle, often within the context of the abilities and limitations of their respective conditions. और ये नेशनल सेंटर ऑन फिजिकल एक्टिविटी एंड डिसेबिलिटी ने इस चीज़ के बारे में ये सारी रिपोर्ट दी और हमें ये देखना पड़ेगा कि ये बड़े ही अफसोस की बात है कि स्पेशल नीड बच्चे जो हैं वो मेन स्ट्रीम और नॉन डिसेबल बच्चों की निस्बत बहुत कम एक्टिवली इन्वॉल्व किए जाते हैं किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी कंपटीशन में, किसी भी मैचेस में, जिसकी वजह से ये बच्चे दूसरे बच्चों से फिजिकली काफ़ी पीछे रह जाते हैं। एंड देन स्टीरियोटाइप प्रैक्टिसेस जब हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली चिल्ड्रन एंड यूथ विद स्पेशल नीड्स आर ऑफन ओवरलुक्ड एंड सिस्टमैटिकली एक्सक्लूडेड व्हेन स्कूल फिजिकल एक्टिविटीज आर प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। यूजुअली this is not due to international efforts to exclude or ignore. This exclusion, which significantly limits the experiences of these children, is more likely due to the lack of understanding of the abilities of the students and fear of potential injury related to the limitations of various conditions suffered by students with special needs and disabilities. जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो स्टीरियोटाइप प्रैक्टिसेस को जारी रखे हुए हैं, उसके अंदर एक तो टीचर्स की नेग्लिजेंस कि वो बच्चों को इग्नोर कर देते हैं कि इनको हमने फिजिकल एक्सरसाइजेस के अंदर इन्वॉल्व करना है। दूसरी चीज़, वो इस चीज़ से डरते हैं कि अगर हम करेंगे तो कहीं बच्चा जो है वो इंजर ना हो जाए या अपने आप को कोई उसको हार्म ना पहुंच जाए। और तीसरी चीज़ और सबसे बड़ी यही कि बाज़ टीचर्स जो कि स्पेशल एजुकेशन में
इंस्टीट्यूशंस में इन्वॉल्व हैं, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल एंड हाउ टू इन्वॉल्व दीज चिल्ड्रन इन फिजिकल एक्टिविटीज। जिस तरह आप ये नीचे ये तस्वीर देख रहे हैं कि 57% जो हैं ये फिजिकली जो हैं लोग डिसेबिलिटी के साथ हैं, 18 to 64 ईयर्स ऑफ एज के, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में इन्हें इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता। एंड देन व्हेन वी लुक एट दैट, देन वी गॉट टू मेक इट रियलाइज फॉर एवरीवन कि इसके बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं फिजिकल एक्टिविटी के फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रन। These benefits of physical activity participation for students with special needs are the same as for other students। कि जिस तरह हमारे दूसरे अपने बच्चे मेन स्ट्रीम बच्चों के लिए ये बेनिफिशियल है, इसी तरह ये हमारे स्पेशल नीड बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है। और बेनिफिट्स उसके किस पर्सपेक्टिव में है, किन किन जगहों पे है? लुक एट दिस। इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस उनकी इम्प्रूव करती है, उनके जो है रिडक्शन ऑफ डिजीज़ रिस्क, कि अगर बच्चे फिज़िकली इन्वॉल्व होते हैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ के अंदर तो उनके डिजीज़ के रिस्क को कम करती है। एंड देन स्किल डेवलपमेंट होती है, उनका माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग होता है, उनका सोशलाइजेशन एक दूसरे से बढ़ता है, उनका इंटरेक्शन, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, उनके जो है पेशेंस बढ़ती है, उनका जो है वो सोशली एंड इमोशनली वेलबींग की तरफ जाते हैं, और उनके अंदर ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में, कम्युनिकेशन में, शेयरिंग में, केयरिंग में। एंड देन डिक्रीज बॉडी फैट, कि ये बच्चे जो बहुत सारी मजबूरियों की वजह से जो है चल फिर नहीं सकते, तो वो ज़्यादा वही चीज़ अपनी जो है वो खाने पे लगाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो चबी हो जाती है और वो मोटे हो जाते हैं, ओबीस फैट नज़र आते हैं। तो अगर वो फिज़िकल एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व होते हैं तो इसका मतलब है कि दे डिक्रीज their body fat, and then when they are physically involved, then definitely जो है उनका जो है अटेंशन जो है वो बढ़ती है इन चीज़ों की तरफ, उनका कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ता है, उसको वो जो है ग्रेटर अटेंशन वो इन गेम्स की तरफ देते हैं, और वो उसके अंदर खुशी महसूस करते हैं, और उनकी वो इस फिज़िकल वेलबींग के अंदर जो है उन्हें एक एडवांस जो है उसको वो लेके चलते हैं, एंड दे लुक फॉरवर्ड टू इट। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत सारी ऐसी फिज़िकल एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं जिससे कि उनकी कंट्रोलिंग द प्रोग्रेस ऑफ क्रोनिक डिजीज़ के उससे उनका इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है, उनके जो है मैनेजिंग फंक्शनल जो है वो डिक्लाइनिंग हो जाते हैं, मेडिएटिंग द साइकोलॉजिकल एंड सोशल इम्पैक्ट जो है ऑफ डिसेबिलिटी, ये उसको जो है सपोर्ट करते हैं। मोस्टली ऐसे बच्चे जो हैं वो इंडिपेंडेंस की तरफ जाते हैं, कि वो इंडिपेंडेंट जो है वो इंक्रीज होती है उनके अंदर इंडिपेंडेंस, फैसिलिटेटिंग लाइफ स्किल्स कॉम्पिटेंसीज, कि ये चीज़ उनको बेनिफिट देती है, और वो ये कहते हैं कि हम अगर ये चीज़ कर सकते हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप भी ले सकते हैं। एंड देन इम्प्रूविंग ओवरऑल इंक्लूजन, तो उसका जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो उसका रिलेशनशिप, उसकी फ्रेंडशिप्स, उसके पेयर ग्रुप, स्मॉल ग्रुप से जो है लार्ज ग्रुप की तरफ चले जाते हैं, और वो कम्युनिटी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर देता है। और यही चीज़ जो है कम्युनिटी लाइफ में जब बच्चा जाता है ऐसा,
तो वो उसकी सोशलाइजेशन जो है वो एनहांस होती है, और यही चीज़ उसको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को और ज़्यादा इंडिपेंडेंट और वेल बीइंग जो है वो हो जाता है। देन व्हेन वी लुक एट द कि वो कौन से बैरियर्स हैं जो स्पेशल नीड बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की राह में हायल हैं। What personal factors can affect choice of physical activities? These range from factors related to the built environment, जो कि इंसानों की तरफ से बनाई गई है, अर्बन स्प्रॉल, वॉकेबिलिटी, स्ट्रीट कनेक्टिविटी, के ये जो एनवायरनमेंट मैन मेड क्रिएट की गई है, जिसके अंदर उसके लिए पेवमेंट्स नहीं हैं, उसके लिए वॉकिंग स्ट्रीट्स के अंदर जो है सहूलत नहीं दी गई, फिर नेबरहुड सेफ्टी उसकी, सोशल नेटवर्क एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन टू सोशो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी और सोशो इकोनॉमिक limitations, as well as customs and beliefs that can influence vocational and recreational physical activity, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा limitations and barriers खड़े कर देती है। The range and diversity of special needs requires a detailed review of student individual educational plans in planning ईच एक्टिविटी, जिसके लिए इंस्टीट्यूशंस को, स्कूल्स को एंड पेरेंट्स को जो है मिल के उसके इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान्स को जो है देखना पड़ेगा और उसको रिस्केड्यूल करना पड़ेगा। कंसर्न्स अबाउट रिस्क एंड लाइबिलिटी ऑफ इंजरी टू सेल्फ एंड अदर्स, इवन दो रेट्स फॉर इंजरी इन स्पोर्ट्स इज सिमिलर फॉर बोथ डिसेबल एंड नॉन डिसेबल इंडिविजुअल्स। ये हर किसी को पता है कि जब बच्चे हैं, खेलते हैं, बड़ा खेलेगा, छोटा खेलेगा, स्पेशल नीड खेलेगा, मेन स्ट्रीम खेलेगा, तो हर किसी को इंजरी का ख़तरा होता ही है स्पोर्ट्स में। एंड देन द इंटरेस्ट एंड परसीव्ड इनकॉम्पिटेंस ऑफ द चाइल्ड, लैक ऑफ स्टाफ एक्सपर्टीज़, ये बहुत बड़े बैरियर्स हैं जो कि इफ स्टाफ इज़ नॉट एक्सपर्ट, यू कैन नॉट आस्क चिल्ड्रन टू have a safe and healthy physical activity. School waiver procedures, lack of physician support, lack of social support, and then cost to adapt to provide any physical activity for students with special needs. Safety concerns, health and safety first, and if that is not provided, then it's very dangerous to involve special need children in any physical activity which could harm them and others as well. Need for special equipment or facilities, and that is very common barrier that according to IEP we have to keep in the view that according to children's needs, have we got the equipment which is going to facilitate to improve his health condition, or have we got the cost to buy it to provide the facility to the students. तो ये सारी चीज़ें हमें
उस बारे में देखनी पड़ती हैं। When we talk about special need children and special educational needs for these special uh, need children, then we have to include inclusion in it. Inclusive physical activities whereby children with special educational needs and disabilities and without SEND participate with and against each other are beneficial to all children. For instance, research suggests that there are significant social benefits for children without SEND, such as increased tolerance to individual differences, greater awareness and sensitivity to human diversity and the needs of others. Therefore, the responsibility should be on physical activity providers to deliver inclusive physical activities, whether that be in school, club or other settings. इंक्लूजन एक इतना ब्यूटीफुल जेस्चर है कि इट्स एन एटीट्यूड कि हम दिल से कबूल करते हैं कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो हैं दे शुड बी इंक्लूडेड इन मेन स्ट्रीम स्कूल विद मेन स्ट्रीम चिल्ड्रन, विद नॉर्मल चिल्ड्रन। उसके अंदर क्या है कि इससे उनको एज अ सोसाइटी एक बड़ा प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव जेस्चर शो होता है कि जिससे कि उनके बच्चों में एक अवेयरनेस आती है कि दे आर ह्यूमन बीइंग, दे आर लाइक अस बट विथ लिटिल बिट डिफरेंस। उनके अंदर सेंसिटिविटी टू ह्यूमन डाइवर्सिटी पैदा होती है, उनके अंदर पेशेंस आती है, एम्पैथी आती है। ये सारी चीज़ें जो हैं एक अच्छे मुआशरे को परवान चढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इंक्लूजन के अंदर ये बहुत बड़ा रोल जो है ये टीचर्स के ऊपर आता है कि हाउ दे आर गोइंग टू involve these children by giving different roles in the activities. And then when we talk for tips for inclusion, providing careful directions and simplifying steps involved in activities can help students with cognitive limitations understand what is to be done in a particular activity. उसके अंदर ये बहुत चीज़ सबसे पहले इस चीज़ का सीखना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी जो है स्पेशल नीड बच्चे को इंक्लूजन में जब लेके आते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवाते हैं, तो उसको डायरेक्शंस को सिंप्लीफाई करें, उसके स्टेप्स को सिंप्लीफाई करें, ईजी करें उसकी एक्टिविटीज़ को, ताकि वो उसकी कॉग्निटिव लिमिटेशंस जो हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के मुताबिक उसको वो ख़ास एक्टिविटी के बारे में बताया जाए। फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स को लिमिट कर दें कि 1 2 3 प्रैक्टिस्ड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी अगर आप जो है फुटबॉल खेलना चाहते हैं या आप कोई बेसबॉल खेलना चाहते हैं कि इंस्टेंट आप 3-4 लोगों की टीम बनाएं, 2 लोगों को बीच में इन्वॉल्व करें एंड उस ग्रुप के अंदर फिर प्रिपेयर स्टूडेंट्स को करें टू प्ले अ टीम रोल और फिर उसको एज अ पेयर ग्रुप बना दें और फिर हेल्पफुल स्ट्रेटेजी दें फॉर सपोर्टिंग द पार्टिसिपेशन of students with cognitive disabilities as they can provide
cues to help them make the necessary moves safely। तो ये चीज़ें उसकी इंक्लूजन को उसको जो है स्ट्रेंथन करती हैं। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट इंक्लूजन, तो उसके अंदर पेरेंटल रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल। पेरेंट्स एक्ट एज रोल मॉडल्स of children. Children with SEND, like all children, are more likely to be physically active outside of school if their parents are supportive. ये तो हमेशा से देखने में आया कि अगर पेरेंट्स स्कूल से बाहर बच्चों के साथ सपोर्टिव हैं तो बच्चा ज़रूर एक्टिव होगा। आफ्टर ऑल, parents are often the ones that find opportunities for their children to be physically active, pay any associated costs, and act as taxi driver। कि उनको जहाँ पे भी कहीं पे लेके जाना है, कोई भी कीमत अदा करनी पड़ती है, वो अपने बच्चे की परवरिश और फिजिकल उसकी सपोर्ट के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। Therefore, engaging in physical activity outside of school as a family is important. Going to the park for a walk, to woodlands, to forests, to playlands, or joining local clubs or leisure centers are a few ways in which families of children with special needs can engage in physical activities together। And you can see the foundation for student success depends on parent teachers, that is equal to successful child। And then why physical well-being useful for children with special educational needs? Physical well-being integrates mental health and physical health, resulting in more holistic approaches to disease prevention and health promotion. Measuring, tracking, and promoting well-being can be useful for multiple stakeholders involved in disease prevention and health promotion। और ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो वेलबींगनेस है, ये जो फिज़िकल एक्सरसाइजेज के साथ एंड फिज़िकल हेल्थ एंड वेलबींग के साथ जो स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं, क्या करने के लिए, हु आर इन्वॉल्व्ड इन प्रिवेंशन, जो स्पेशल नीड बच्चों की बीमारियों की रोकथाम के लिए और हेल्थ प्रमोशन के लिए सरकर्दा है, उन सब स्टेक होल्डर्स के लिए जो है ये फिज़िकल वेलबींगनेस ऑफ चिल्ड्रन वेरी इम्पोर्टेंट, और स्पेशल नीड बच्चों को इसके अंदर इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन जब हम इसके बेनिफिट्स ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स देखते हैं, तो children of special educational needs who in general experience poorer physical health outcomes than other children of the same age. There is also evidence pointing towards a relationship between physical activity and improved mental well-being, the development of problem-solving skills, and increased concentration and academic achievement among children with SEND. When children with SEND engage in physical activity in groups, especially with those groups include children without special needs, they have been found to develop important life skills like verbal and non-verbal communication, sharing and caring, and the ability to make and keep friends. These skills are crucial in later life
for developing strong and supportive social networks, gaining employment and living independently. तो इस चीज़ के बारे में ये इससे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि by involving these children physically actively ये एक मुआशरे के पॉजिटिव एंड फॉल मेंबर बन जाएंगे और यही हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए एक अवेयरनेस एंड उसके कम्युनिटी डेवलपमेंट की ये स्ट्रेंथ होगी विच विल गोइंग टू ब्रिंग चेंज in our minds and attitudes. So dear students, ये था हमारा आज का लेक्चर and again these are the references for your support कि आप अगर इसको in detail पढ़ना चाहें तो these are the books and sites जहाँ पे आप जा सकते हैं. Thank you very much for listening.